નમસ્કાર, તમારું સૌનું સ્ટડી પેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં આપણે કક્ષા 5 ધોરણ 5 હિન્દીનું પ્રકરણ 9 कैसा शोर વિશે જોઈશું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એક ચિત્ર આપેલ છે, જે ચિત્ર જોતા આપણને સમજાય છે કે આ ચિત્ર એક ખેતરનું છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વિવિધ પ્રકારના શાકભાજીઓ વાવેલા છે, જેમ કે અહીંયા મરચા છે, પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો રીંગણા છે, અહીંયા ટમેટા છે, અહીંયા એક ખેડૂત જે છે તે ઝાડ નીચે આરામ કરી રહ્યો છે. એક કૂવો છે અને એક ઘર પણ અહીંયા આપેલ છે. તો ચાલો હવે આપણે પાઠને જોઈએ. इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है. अब हम पाठ पढ़ने की शुरुआत करते हैं. बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी. दोपहर का समय था. બિરજુ ચાચાએ પોતાના ખેતરની અંદર શાકભાજી વાવેલા હતા અને दोपहर अर्थात बपोरनो समय હતો. बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. હવે જે બિરજુ ચાચા જે છે, બિરજુ કાકા જે છે, તે ઝાડના છાયામાં સૂતા હતા અને તેમને ઊંઘ આવી ગઈ હતી. तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई. હવે ખેતરમાં જેટલા પણ શાકભાજી વાવેલા હતા તે બધા રમત રમવા માટે ભેગા થયા. ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई. હવે નોક ઝોંક પર ઉતર આઈ નો અર્થ થાય છે ઉગ્ર ચર્ચા કરના, અર્થાત રમતા રમતા બધી શાકભાજીઓ એકબીજા સાથે લડવા લાગી. હવે આગળ જોઈએ. હવે અહીંયા આપણને ચિત્ર આપેલા છે. આપણે ચિત્ર ઉપરથી તે શાકભાજીનું નામ લઈને વાંચન કરવાનું છે. आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ. सरताज का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ. यानी बटेका કહે છે કે તે બધી શાકભાજીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. સભી સબ્जियां मेरे बिना अधूरी है. અર્થાત જેટલા પણ શાકભાજી બને છે, આપણને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર હોય તો લગભગ બધા શાકભાજીમાં આપણે બટેકાને ઉમેરી શકીએ છીએ. બચ્ચો बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ. જો આજના જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો હશે એ બધા લગભગ બાળકો હશે એ બધાને બટેકા જે છે તે ખૂબ ભાવતા હોય છે. ચાટ, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है. હવે જોઈએ ચાટ. તો આ ચાટ છે તે બટેટાથી બને છે. ચિપ્સ એટલે આપણે જેને વેફર કહીએ છીએ તે પણ બટેકાથી બને છે. ટિકિયા, આ ટિકિયા છે, આલુ કી ટિકિયા, તો આ પણ જે છે તે બટેટાથી બને છે અને આ ચટપટી અને મજેદાર હોય છે. शकरकंद ने कहा. अब शकरकंद क्या होता है? शकरकंद अर्थात शक्करिया. शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. હવે શક્કરિયા એમ કહે છે કે હું પણ બટેકાનો મિત્ર છું, મને પણ ઘણા બધા લોકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે. तब मटर से मटर के दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए. कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम. ત્યાં જ જે આપણે વટાણાની સિંગ હોય તેમાંથી વટાણા ઉછળીને બહાર આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે તમે શું અમને ભૂલી ગયા છો? કારણ કે ઘણી બધી શાકભાજી જ્યારે શાક બનતા હોય છે, પુલાવ બનતો હોય છે અને ચટપટી કચોરીઓમાં પણ અમે જે છે તે ઉમેરાતા હોઈએ છીએ. गाजर. उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े. लौकी अर्थात दूधी. रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली. હવે જુઓ, અત્યાર સુધી કોણ કોણ મેદાનમાં હતા લડવા માટે? સૌથી પહેલા તો હતા બટેકા, પછી આવી ગયા શક્કરિયા, હવે આવે છે દૂધી અને ગાજર અર્થાત લૌકી और ગાજર. તો લૌકી શું કે છે? રાયતા. જો આ રાયતો બને છે, દૂધીનું રાયતું બને છે. પછી છે કોફતે, આને કોફતા કહેવાય છે, આવી રીતે બને છે. અને હલવા, દૂધીનો હલવો તો બધાએ ખાધો જ હશે. लौकी का हलवा हमारे बिना बन सकते नहीं है. गाजर ने बात काटते हुए कहा,
हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये देखो गाजर का हलवा और लौकी का हलवा सबको बहुत अच्छा लगता है और इसका नाम सुनते ही सभी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। ऐसा कौन कहता है? गाजर कहता है कि मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। बंद गोभी का अर्थ होता है कोबीज। आ जोईने कोबीज આગળ આવી। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। કોબીજ એમ કહે છે કે શાક તો મારું બને જ છે, તેમ એના સિવાય પણ કચુમર અને સલાડમાં પણ મારો ઉપયોગ મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ। मिर्च पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी। मिर्च भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आपकी क्या कीमत है, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ। જો આપણને બધાને ખબર છે કે મરચા જે છે અથવા મિર્ચ જે છે તે લગભગ બધા જ પ્રકારની શાકભાજીમાં આપણે સ્વાદ તીખો કરવા માટે તેને મસાલા તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો મિર્ચ જે છે તે એમ કહે છે કે મારી કિંમત પણ બહુ વધારે છે, હું પતલી અને ચુસ્ત છું, મારા વગર બધી સબ્जियां ફીકી છે, મતલબ તેમાં તમને તીખો સ્વાદ આવશે નહીં। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। ભીંડી અર્થાત ભીંડો। ભીંડો પણ પોતાનું તમને ખબર હોય તો ભીંડો જે કૂણો ભીંડો હોય છે તે કોમળ હોય છે અને તેનો સ્વાદ તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। જ્યારે કારેલું જે છે તે બોલવા જઈ રહ્યું હતું તો ટમાટરે એની વાત કાપી નાખી અને વચ્ચે જ બોલવા લાગ્યું। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। હવે ટમાટર એમ કહે છે કે કારેલાનું નામ સાંભળીને તો દરેક બાળક જે છે દૂર ભાગે છે, કારેલા કોઈને ખાવા ગમતા નથી, પણ ટમેટાનો ખાટો મીઠો સ્વાદ જે છે તે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે છે। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। હવે કારેલા એમ કહે છે કે ખાલી તમારો દેખાવ જ અગત્યનો નથી, તમારું રૂપ રંગ જ અગત્યનું નથી, પણ તમે કેટલા લાભદાયી છો અન્ય માટે તે ખૂબ જ અગત્યનું છે। જેમ કે કારેલું જે છે તે જ્વર એટલે બુખાર અથવા કે તાવ આવેલો હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવાથી તાવમાંથી રાહત મળે છે। હવે આપણે જોઈએ। आखिर में कलगीदार बैंगन आया, उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। अब यहाँ जो बैंगन है उसको बड़ा ही समझदार बताया गया है, क्योंकि वो सब जो झगड़ा हो रहा है उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है और सबको समझा रहा है और ये कहकर समझा रहा है कि दोस्त, हम सब अपने अपने स्थान पर हमारा अलग महत्व है, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना, उसी में हमारी भलाई है। अब देखते हैं शलगम यानी ये बीट, गाजर, फिर यहाँ पर ये है बंद गोभी, ककड़ी, फिर ये जो है बड़ी वाली मिर्च जिसको हम लोग घोलर मरचा જેને કહીએ છીએ वो मिलाकर कचूमर लिज्जतदार होता है। अर्थात આ બધી શાકભાજીનો ઉપયોગ કરીને આપણે કચુમર બનાવી શકીએ છીએ। आलू, शकरकंद, गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। अर्थात बटेटा, सक्करिया, ફ્લાવર અને ભીંડાની જે સબ્જી હોય છે તે ખૂબ જ મનભાવન હોય છે। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। जो મરચા છે, પછી આને કોથમીર કહીએ છીએ અને આદુ, આ બધી વસ્તુ જે છે તે શાકભાજીમાં ટેસ્ટ વધારે છે અને સુગંધ પ્રદાન કરે છે।
આ બધી વસ્તુ જ્યારે એક સાથે ઉપયોગ કરીને શાક બનાવવામાં આવે છે ત્યારે તે ખૂબ મજેદાર બને છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी વેલો પર જા બેઠી। હવે એટલી વારમાં બિરજુ કાકા જે છે તે જાગી જાય છે, ઉઠી જાય છે। તો બધી સબ્જીયા જે છે, શાકભાજી છે તે ઇધર ઉધર મતલબ અહીંયા ત્યાં ભાગવા લાગી, પોતપોતાની જગ્યાએ જવા લાગી। એમાં લૌકી અર્થાત દૂધી, કારેલા અને કાકડી વેલ પર જઈને બેસી ગઈ। અર્થાત આપણને ખબર છે કે દૂધી, કારેલા અને કાકડી જે છે તે વેલ પર ઉગે છે। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। હવે શકરકંદ એટલે સક્કરિયા, બટેટા, ગાજર અને બીટ તે જમીનની અંદર જતા રહ્યા, કેમ કે તે મૂળમાં હોય છે, મૂળ જે હોય છે તે આપણે ખાતા હોઈએ છીએ। પછી ભીંડી, મટર, बैंगन, टमाटर पौधे की डालिया पर छिप गई। હવે મતલબ ભીંડો, પછી છે આપણે કહીએ વટાણા, પછી રીંગણ, ટમેટા એ બધા પોતપોતાના ઝાડની ડાળીઓ પર છુપાઈ ગઈ। बिरजू काका अपने काम में मशगूल हो गए और ફરીથી બિરજુ કાકા જે છે તે પોતાના કામમાં લાગી જાય છે। હવે અહીંયા શબ્દાર્થ આપેલા છે, આપણે એક વખત જોઈ લઈએ। અનૂઠા, અનૂઠા એનો અર્થ થાય છે ઉત્તમ યા અદ્વિતીય। જ્વર, બુખાર અથવા તો તાવ જેને ગુજરાતીમાં કહી શકાય। કાફી, પર્યાપ્ત એટલે આપણને પૂર્ણ રૂપે થઈ રહે તેને કાફી કહીએ છીએ। दोपहर अर्थात मध्याह्न या ગુજરાતીમાં આપણે એને બપોર કહીએ છીએ। ફીકી, સ્વાદહીન આપણને ખબર છે જો મસાલો સબ્જીમાં ના નાખવામાં આવે, શાકભાજીમાં ના નાખવામાં આવે તો તેમાં સ્વાદ હોતો નથી, તેને ફીકી કહેવામાં આવે છે। સરતાજ અર્થાત સર્વશ્રેષ્ઠ। सम्मान, માન, ચાટનો અર્થ થાય છે ચટપટા વ્યંજન, જેમાં ઘણા બધા મસાલા નાખીને બનાવવામાં આવે છે તેને ચાટ કહેવામાં આવે છે। आखिर अर्थात अंत। मजेदार मतलब स्वादिष्ट। लिज्जत मतलब स्वाद। पुलाव सब्जी और चावल से बना व्यंजन, જેમાં જો ભાત જે હોય છે ને તેમાં વટાણા અને અલગ અલગ પ્રકારની શાકભાજીઓનો ઉપયોગ કરીને જ્યારે તેને બનાવવામાં આવે છે તો તેને આપણે પુલાવ કહીએ છીએ। હલવા એક પ્રકાર કી મીઠાઈ, જેમ કે દૂધીનો હલવો અને ગાજરનો હલવો હોય છે તેને હલવા કહેવામાં આવે છે। મન ભાવન અર્થાત મનપસંદ। હવે આપણે મુહાવરે જોઈશું। નોક ઝોંક કરના, ઉગ્ર ચર્ચા કરના। આપણે અહીંયા જોયું કે શાકભાજીઓ છે એકબીજા સાથે નોકઝોક કરતી હતી, અર્થાત ઉગ્ર ચર્ચા કરતી હતી। એ લોકો એવું સાબિત કરવા માંગતા હતા કે અમારામાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। जब भी हम कोई हलवा की डिश देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी हमें उसको खाने का मन करता है। बात काटना, बीच में बोल उठना। देखो जैसे अभी बहुत सारी सब्जियां जो है बातें कर रही थी, उसमें कुछ कुछ सब्जियां किसी और सब्जी की बात काट कर अपनी बात रख रही थी, तो उसे कहते हैं बीच में बोलना, એટલે વચ્ચે બોલવું। હવે આપણે अभ्यास જોઈશું। एक, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। હવે આપણા ઘરમાં કઈ કઈ સબ્જી બનાવવામાં આવે છે? मेरे घर में आलू, बैंगन, फूल गोभी अर्थात फुलावर, करेला, शकरकंद એટલે સક્કરિયા, બંધ ગોબી અર્થાત કોબીજ, लौकी अर्थात दूधी, भिंडी, तुरई, तुरई अर्थात तुरिया आदि सब्जियां पकाई जाती है। આ બધી સબ્જીઓ જુઓ, જરૂરી નથી કે મેં આમાં જે જવાબ લખેલો તમારે પણ એ જ જવાબ લખવો પડે, કારણ કે કોઈ આમાં પોતાની રીતે અલગ સબ્જીના નામ લખે તો પણ તે ચાલે છે। બીજો પ્રશ્ન, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। सूची अर्थात શું? આપણે પાઠમાં જે સબ્જીઓ જોઈ તેમાંથી તમારી મનપસંદ સબ્જી કઈ છે તેનું તમારે નામ બતાવવાનું છે અને શા માટે તમને પસંદ છે તે પણ લખવાનું છે। જોઈએ, मनपसंद सब्जी आलू। वैसे देखा जाए तो आलू जो है हर एक बच्चे का फेवरेट होता है। आलू क्यों फेवरेट होता है सबका? हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है। आलू जो है उसको हर कोई सब्जी के साथ आप उपयोग कर सकते हैं। बैंगन, बैंगन क्यों अच्छा लगता है? यहाँ भिंडी आएगी, हम भिंडी कर देंगे, चलो यहाँ भिंडी आएगी बैंगन की।
पेन ले लेंगे, वहां से ये आ गया पेन। चलो, बैंगन की बिंदी यहाँ आएगी, बैंगन लिखना है हमें, ये आ गई बिंदी, है ना। बैंगन का भरता बहुत स्वादिष्ट होता है। हम सभी ने सर्दियों के मौसम में बैंगन का भरता जरूर खाया रहता है। फूल गोभी अर्थात फुलावर दिखने में अच्छी लगती है या दिखने में अच्छी होती है। શકરકંદ, શકરકંદ એટલે સક્કરિયા, સક્કરિયા શેના માટે હોય છે? તે બહુ ગળ્યા અને મીઠા હોય છે, તો તેને ખાવાની પણ મજા આવે છે। टमाटर, टमाटर कैसा होता है स्वाद में और क्यों पसंद होता है? क्योंकि वह खट्टा मीठा होने की वजह से अच्छा लगता है। करेला क्यों पसंद है? करेला इसीलिए पसंद है क्योंकि बुखार और ज्वर और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए उपयोगी है। मधुमेह अर्थात डाયાબિટીસ જ્યારે કોઈને હોય છે ત્યારે તમે કારેલાનું સેવન કરો તો તમને તે ફાયદો આપે છે। अब देखते हैं आगे। तीसरा, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए या सर्कल कीजिए या वर्तुड़ कीजिए। जैसे पालक, गाजर, सेब, लौकी। देखो, अगर यहाँ हम ढंग से इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि पालक, गाजर और लौकी जो है वो तीनों सब्जियां है, और सेब जो है वो क्या है? वो फल है। तो हमें अलग कौन दिख रहा है? भिन्न मतलब क्या होता है? अलग। अलग कौन है? ये शब्द जो है अलग है, तो हमने इस पर गोला लगा दिया। अब देखते हैं, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। दोबारा हम देखेंगे, ककड़ी, गाजर और बंद गोभी ये तीनों सब्जियों के नाम है, और केला जो है वो फल का नाम है, तो हम केले के आसपास गोला बनाएंगे। दूसरा, पपीता, मूली, आम और अनार। अब देखो, यहाँ पपीता जो है वो फल है, आम भी फल है, अनार भी फल है, लेकिन मूली जो है वो क्या है? वो सब्जी है, तो हम मूली के ऊपर गोला लगाएंगे। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। अब यहाँ तुम देखो, ये कनेर, गुलाब, चमेली ये सारे जो है फूल के नाम है, जबकि धनिया जो है वो सब्जी का नाम है। तो वो भिन्न होता है या अलग होता है। मिर्च, अदरक, ફૂલગોબી, લહેસુન। હવે આની અંદરથી તમે જોશો, મિર્ચ, અદરક અને લહેસુન જે છે તે મસાલા બનાવવામાં ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે ફૂલગોબી જે છે તે શાકભાજી હોય છે, તો આપણે તેના ઉપર વર્તુળ બનાવીશું। હવે આપણે આગળ જોઈએ। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। देखो विद्यार्थी मित्रों, इसमें आप अपने हिसाब से भी हरे रंग की सब्जियों के नाम बता सकते हैं। देखिए, हरे रंग की सब्जियां करेला, पालक, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, ग्वारफली, ये जो सारी है वो हरी सब्जियां कही जाती है, क्योंकि इनका रंग कैसा है? हरा है, तो इनको हरे रंग की सब्जियां के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फलदायी होती है। अब देखते हैं, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? हम सभी को पता है कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? हरा होता है, और पक्के टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है। अब देखते हैं तीसरा, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? हमें पता है, करेला और मेथी की भाजी का स्वाद जो है वो कड़वा होता है। अक्सर हमको लगता है जो कड़वी चीजें है वो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा लाभदायी होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के નામ નહીં આયે હે? ઇકાઈનો અર્થ શું થાય છે? એકમ। મતલબ આપણે જે એકમનો અભ્યાસ કર્યો તેની અંદર કઈ કઈ શાકભાજીના નામ આપવામાં આવેલ નથી, તો આપણે તે જોવાના, એ લખવાના રહેશે। તેમાં જોઈએ, કદ્દુ, तुरई, पालक, प्याज, मूली इत्यादि सब्जियों के नाम नहीं आए है। अर्थात આ બધી સબ્જીના નામ પાઠમાં આવેલા નથી। હવે આપણે આગળ જોઈએ। 5, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? હવે હલવો બનાવવા માટે આપણે કઈ કઈ શાકભાજીની જરૂર પડે છે તે આપણે જોવાનું છે। ચાલો જોઈએ। હવે હલવો બનાવવા માટે गाजर या लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए? चीनी चाहिए। चीनी का अर्थ होता है खांड। घी, इलायची, काजू, बादाम
इत्यादि की जरूरत होती है। अर्थात जो આપણે હલવો બનાવવો હોય તો આપણે તેના માટે ખાંડ અને બીજી અન્ય વસ્તુઓની જરૂર પડતી હોય છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ। ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। હવે એવા કયા કયા ફળ છે જેની આપણે શાકભાજી પણ બનાવતા હોઈએ છીએ। તો જોઈએ, આમ अर्थात केरी, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी बनाई जाती है। अर्थात केरीનું પણ શાક બને છે, કેળાનું પણ શાક બને છે અને અંગૂર એટલે શું કહેવાય આપણે? દ્રાક્ષ। અમરૂદ એટલે જામફળ। આ બધા ફળોનું આપણે શાક બનાવતા હોઈએ છીએ। તો આપણે આવી રીતે જે છે તેનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। હવે આપણે જોઈએ 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે હવે આ ચિત્રને ધ્યાનથી જોવાનું છે। હવે આપણે આ જે છે તેમાંથી ચિત્રમાંથી આપણે વાક્યમાં ઉપયોગ કરીને બનાવવાનું છે। एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। જો એક જંગલ હતું, ત્યાં એક બરગદનું પેડ હતું। બરગદનું જે ઝાડ છે, બરગદનું જે પેડ છે, ત્યાં એક જોવા જઈએ તો એક હાથી રહેતો હતો। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। अब ये पेड़ और इस हाथी के बीच में जो है बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब हम बरगद એટલે વડનું વૃક્ષ આપણે જેને કહી શકાય છે। હવે જુઓ બીજું ચિત્ર। एक दिन बातों ही बातों में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। હવે એક દિવસ હાથી ગુસ્સે થઈ ગયો તો એને શું કર્યું કે વડની જે આ જો બરગદનું જે પેડ છે તેની ડાળીઓ એ તોડવા लाग्यो। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। એને શું કર્યું કે આ બરગદનું પેડ જે છે, જે ઝાડ છે, તેને જડથી ઉખાડવા માટે એને ખેંચવા માંડ્યો, તેને તોડવા માંડ્યો। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं तो सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। बाद में जब ये हाथी इस तरह बरगद के पेड़ को नुकसान कर रहा था, तब बरगद के पेड़ ने कहा कि तुम मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं तो सबकी मदद करता हूँ, सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ, तो ऐसा मत करो। अब तीसरे चित्र में हम देखते हैं, गर्मी के मौसम में सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूं। अब बरगद का पेड़ कहता है कि जब गर्मी का मौसम होता है, यानी ઉનાળો જ્યારે હોય છે ત્યારે બધા પશુ પક્ષીઓને હું શું આપું છું? છાંયડો આપું છું। अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी सहायता करूंगा। अर्थात મને એમનેમ રહેવા દો, તોડશો નહીં, ઉખાડશો નહીં, હું તમારી પણ મદદ કરીશ। कई दिन बीत गए, गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। હવે ગરમીની સીઝન આવી ગઈ છે, ગરમીની ઋતુ, ઉનાળામાં શું છે કે હાથી વ્યાકુળ થઈ ગયો કારણ કે બહુ જ તડકો પડવા लाग्यो। હવે આગળ જોઈએ। હવે इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया इस ओर आओ, मेरी छांव में बैठो, आराम करो। હવે જે આ બરગદનું પેડ જે છે, બરગદનું ઝાડ જે છે, તે હાથીને એમ કહે છે કે તમે હાથી ભૈયા અહીંયા આવી જાઓ, મારા છાંયડામાં બેસો અને આરામ करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आया, उसे सचमुच ठंडक का एहसास हुआ। હવે હાથી જે છે તે બરગદના ઝાડની નીચે આવી જાય છે અને તેને ઠંડકનો અનુભવ થાય છે। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना, हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। यहाँ जो है हम क्या करेंगे? खुश हो गए। चलो हम अभी इसको चेंज कर देते हैं, खुश हो गए। यहाँ ये काट देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे खुश हो गए, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, खुश हो गए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चलो 7, दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं। पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों चित्र में भेद का अर्थ होता है तफावत। આ બંને ચિત્રમાં શું તફાવત છે તે આપણે જાણીને તેનું વર્ણન કરવાનું છે। જુઓ, પહેલા આપણે જોઈ લઈએ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक किसान जो है वो हल चला रहा है, जबकि यहाँ पर 2 किसान जो है वो खेतों को जोत रहे हैं। अर्थात
કે આ જો રીંગણા કાઢી રહ્યા છે અને અહીંયા જે બીજા કિસાન જે છે, ખેડૂત જે છે તે ભીંડો કાઢી રહ્યા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બે છોકરાઓ છે, અહીંયા એક છોકરો છે, અહીંયા બકરી જોવો છો તમે, જે બકરી જે છે તે છોકરાની આગળ ઊભી છે, અહીંયા બકરી જે છે તે છોકરાની પાછળ ઊભી છે. હવે અહીંયા જુઓ મોર ઊભો છે એમને જોઈ રહ્યો છે, ત્યારે અહીંયા મોર જે છે તે કળા કરી રહ્યો છે અથવા નાચી રહ્યો છે તેમ કહી શકાય છે. તો ચાલો હવે આને આપણે હિન્દીમાં લખીશું. चलो चित्र एक में एक खेत है और चित्र दो में दो खेत है. दूसरा, एक किसान हल चला रहा है. अब देखा चित्र एक में क्या कर रहा है, किसान हल चला रहा है. दूसरे में दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं. अब दूसरे चित्र में हमने देखा कि दो किसान थे और वो एक जो है वो बैंगन तोड़ रहा था, दूसरा जो है भिंडी तोड़ रहा है. दो लड़के दिखाई दे रहे हैं. हमने देखा कि चित्र एक में कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं, जबकि दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं. यहाँ पर एक ही लड़का है और उस खेतों में क्या बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं. एक मोर नाच रहा है. चित्र एक માં મોર નાચી રહ્યો છે, અહીંયા મોર खड़ा हुआ है. હવે 5, एक बकरी लड़के के आगे खड़ी है. यहाँ हमने देखा कि चित्र एक में बकरी जो है वो लड़के के आगे खड़ी है, जबकि दूसरे चित्र में बकरी जो है वो लड़के के पीछे खड़ी है. अब देखते हैं एक, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे. अगर हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता होगा बिरजू चाचा जो है वो पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे. कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है. कचूमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है. आप सभी लोगों ने जो है कचूमर अपने घर में खाया होगा. आप सभी को पता है कचूमर में क्या क्या चीजों का यूज होता है. बंद गोभी अर्थात कोबीज, मूळा, गाजर, बीट, डુંગળી, કાકડી, મરચા, ટમેટાનો उपयोग કરવામાં આવે છે. अब आगे देखते हैं, आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है. अब देखो आलू से क्या क्या चीजें बनती है. तो आलू से एक तो पहले चाट बनता है, दूसरा चिप्स बनते हैं, तीसरा टिकिया, ये आलू की टिकिया है. ये सारी चीजें जो है चटपटी और मजेदार चीजें बनती है. अब देखते हैं चौथा, मसालों से रसोई में क्या होता है. देखो मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं, जैसे कि धनिया है, हल्दी है, उसके बाद अदरक है, मिर्च है. इन सारी चीजों से स्वाद और सुगंध मिलते हैं. अब देखते हैं आगे, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी. तो देखते हैं, बैंगन देखो बहुत बुद्धिमान बताया गया है यहाँ पर. बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है. मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. यानी जब सभी सब्जियां एक दूसरे से लड़ रही थी, तब बैंगन ने आके समझाया कि आप सबका अपना अपना उपयोग और महत्व अलग अलग है. अर्थात हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना ही हमारी भलाई है. बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है. बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है, क्योंकि इन्हें हम जो है आलू, देखो आलू को जब हम उबालते हैं यानी બાફેલા બટેકા જે બધાને ખાવા ખૂબ જ ગમતા હોય છે. ગાજર અને આપણે શકરકંદ અર્થાત સક્કરિયા આ અને ટમેટા ત્રણેય તો આપણે કાચા ખાઈ શકીએ છીએ, જેથી કરીને તે બાળકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હોય છે. अब देखते हैं आगे, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए. देखो जमीन के नीचे पैदा होनी सब्जियों के नाम में आलू, गाजर, प्याज, मूली, शकरकंद आदि सब्जियां जो है जमीन के नीचे पैदा होती है. अब देखते हैं, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है. ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी आदि सब्जियां बेलों पर होती है. अर्थात કાકડી, કારેલા, તુરિયા, દૂધી આ બધી જે છે તે શેના ઉપર હોય છે, વેલ પર ઉગતી હોય છે. હવે જોઈએ આગળ, 2, नीचे दी गई
सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। अब हम बैंगन के बारे में दो वाक्य लिखेंगे, फिर टमाटर के बारे में, फिर करेला, लौकी और गाजर के बारे में दो दो वाक्य लिखेंगे। सबसे पहले बैंगन कैसा दिखता है? देखो बैंगन ऐसा दिखता है, हम सबको पता है। यानी बैंगन काले या बैंगनी रंग का होता है। देखो ये काला या बैंगनी रंग का बैंगन होता है। दूसरा, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। यहाँ पर देखो उसके माथे पर क्या है? हरे रंग की कलगी होती है। दूसरा, बैंगन गोल या लंबा भी हो सकता है। अगर देखो हम यहाँ और एक वाक्य ऐड करना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि बैंगन का भरता जो है वो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अब देखते हैं टमाटर। टमाटर लाल रंग का होता है। हम सभी ने टमाटर देखा हुआ है और उसका स्वाद जो है वो खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। अब जो टमाटर का स्वाद जो है खट्टा, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमें अच्छा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अच्छा। ये लिख लिया हमने अच्छा, तो ये सही हो गया। चलो, उसका खट्टा मीठा स्वाद जो है वो सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। अब देखते हैं करेला। करेला हम सभी ने देखा हुआ है। करेला हरे रंग का होता है। वह मधुमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी होता है। करेला ज्वार यानी बुखार और मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारियों को ठीक करने में बहुत मदद रूप या उपयोगी होता है। उसका स्वाद कड़वा होता है। ज्यादातर बच्चों ने करेला नहीं खाया होगा, लेकिन करेला खाने से जो है हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अब देखते हैं लौकी। लौकी अर्थात दूधी। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। આપણે બધાએ દૂધી જોઈ છે, તે લાંબી હોય છે અને લીલા રંગની હોય છે। लौकी का हलवा बनता है। આપણને બધાને ખબર છે કે लौकी अर्थात દૂધીનો હલવો આપણને ખૂબ પસંદ હોય છે। अब देखते हैं गाजर। गाजर लाल रंग का होता है। हम सभी ने गाजर देखा हुआ है। कच्चे गाजर बच्चे जो है ज्यादा खाना पसंद करते हैं। गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। गाजर જે છે તે લાંબુ હોય છે અને એક બાજુથી અણીવાળું હોય છે। अब देखते हैं चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी मंडी का चित्र दिया हुआ है और इस चित्र के आधार पर हमें लेखन करना है, अर्थात कुछ वाक्य लिखने हैं। तो अगर इसको हम पहले देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ठेले वाला, ठेले अर्थात रेकड़ी જેને આપણે કહીએ છીએ, જેને લારી કહીએ છીએ, ठेले वाला यहाँ खड़ा है और अपनी सब्जियां बेच रहा है। यहाँ एक महिला जो है उसके साथ एक बच्चा जो है वो सब्जी खरीद रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो दुकान भी दी हुई है। इस दुकान पर आप देख सकते हैं कि ये दो महिलाएं जो है वो कुछ खरीद रही है, जबकि एक दुकानदार जो है वो बैठा हुआ है और यहाँ पर ये दो लोग जो है कुछ खरीद रहे हैं। यहाँ पर नीचे भी हम लोग देख सकते हैं कि दो महिलाएं जो है वो कुछ चद्दर बिछाकर अपनी सब्जी टोकरियों में रखकर बेच रही है। उसमें से एक महिला जो है तराजू का उपयोग करके सब्जियां तोल के दूसरों को दे रही है, जबकि दूसरी महिला के पास कोई ग्राहक नहीं है, तो वो ग्राहक का इंतजार कर रही है। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। चलो, यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी की दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। एक स्त्री ठेले वाले से सब्जी खरीद रही है। उस स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। मंडी के दोनों ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमें लिखना था। अब देखते हैं चार। नीचे दिए गए वाक्य
वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। देखिए हमारी मातृभाषा कौन सी है, हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो हमें इन सभी वाक्यों का गुजराती में अनुवाद करना है। चलो सबसे पहला वाक्य पढ़ते हैं। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। ये देखो, बधी शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी छे। दूसरा, गाजर से हलवा बनता है, अर्थात गाजर थी हलवो बने छे। तीजू, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। હવે જે છે મસાલા જે છે, મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। મસાલામાં શું આવે છે તો કે કોથમીર આવે છે, આદુ આવે છે, મરચા આવે છે, હળદર આવે છે, આ બધી વસ્તુ આવે છે। 4, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, अर्थात कारेला आरोग्य માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ। बिरजू चाचा सो गए, अर्थात बिरजू काका सुई गया। અહીંયા પૂર્ણ વિરામ નહીં આવે, આપણે અહીંયા આને ભૂસી નાખીશું, આને ઇરેઝ કરી દઈશું। હવે આગળ જોઈએ। देखिए, पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होंगी। देखो, इस इकाई जब हम पढ़ रहे हैं तो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अर्थात શિયાળો ચાલી રહ્યો છે। તો અત્યારે ખેતરમાં કઈ કઈ સબ્जियां હશે અથવા શાકભાજી હશે। તો શિયાળામાં શું હોય છે, सर्दियों में गाजर, मूली, शकरकंद, करेला, भिंडी, बैंगन, कद्दू, मेथी, पालक, ककड़ी, मटर आदि सब्जियां होंगी। जो અત્યારે આપણા ઘરમાં જે પણ શાકભાજી બનાવવામાં આવતા હશે તે બધા શાકભાજીઓનું અહીંયા આપણે લિસ્ટ બનાવીને લખી શકીએ છીએ। इनमें कौन कौन सी सब्जी होंगी। बेल पर, पौधे पर, जमीन के नीचे। હવે આ જે છે આમાંથી વેલ ઉપર કઈ સબ્જી હશે, पौधा पर अर्थात નાનો છોડ હોય તેના પર કઈ હશે, અને જમીનની નીચે કઈ હશે અર્થાત મૂળમાં કઈ હશે। જો બેલ પર કઈ હશે તો કે કારેલા, करेला, कद्दू और ककड़ी, ये तीनों बेल के ऊपर उगती है। अब देखते हैं पौधों पर कौन सी होंगी। तो भिंडी, बैंगन, मेथी, पालक और मटर, ये जो है पौधों पर पाई जाएगी। जमीन के नीचे का देखते हैं। जमीन के नीचे गाजर, यहाँ पर नीचे की भी मात्रा जो है हम बदल देंगे। ये नीचे की मात्रा जो है यहाँ पर से ऐसी आएगी। जमीन के नीचे ये वाली मात्रा को हम हटा देंगे। आज છે અહીંયા આવશે દીર્ઘઈ। यस, चलो હવે જોઈએ આગળ। ગાજર, મૂડી और शकरकंद, अर्थात सक्करिया જે છે તે જમીનની નીચે થાય છે। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे प्रशंसा है और उसका विरोधी शब्द जो है वो निंदा होता है। तो हमें दोनों के ऊपर वाक्य बनाना है। सबसे पहले इसके ऊपर बनाएंगे। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, अर्थात जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ होती है, तेना वखाण थाय छे, तेने प्रशंसा कहेवाय छे। પછી बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। નિંદાનો અર્થ થાય છે કે તેના વિશે ખરાબ બોલવામાં આવે છે। હવે જોઈએ અધૂરા। અધૂરાનું विरोधी शू થશે, पूरा। अधूरा का विरोधी जो है, विरोधी शब्द होगा पूरा। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। आप में से सभी बच्चे इतने अच्छे हैं कि जो सभी बच्चे जो है अपना काम यानी अपना CW, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास वर्ग, વર્ગખંડની નોટબુક, તે પૂરી કરીને રાખતા હશે। કારણ કે આપણે મૂર્ખ નથી, આપણે તો હોશિયાર છીએ। તો આપણે કોઈ પણ કામ અધૂરું છોડીએ નહીં। મૂર્ખ लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। સમજદાર લોગ કામ પૂરા કરતે હે, એટલે જે પણ સમજદાર હોય છે તે પોતાનું કામ શું કરે છે, પૂરું કરે છે। હવે જોઈએ અહીંયા બે, પસંદ નું વિરોધી થશે નાપસંદ। તો આપણે તેને વાક્યમાં આવી રીતે, अच्छा अध्यापक को नियमित छात्र पसंद है। नियमित छात्र એટલે શું કે જે વિદ્યાર્થીઓ નિયમિત રીતે રોજ જે શાળાએ આવતા હોય છે તે વર્ગ શિક્ષકને ખૂબ પસંદ હોય છે। नापसंद એટલે પસંદ નથી હોતા। कक्षा अध्यापक को अनियमित छात्र नापसंद है, अर्थात જે વિદ્યાર્થીઓ અનિયમિત હોય છે, રોજ શાળાએ નથી આવતા, તે વર્ગ શિક્ષકને પસંદ હોતા નથી। अब देखते हैं भलाई। भलाई का विरोधी शब्द होता है बुराई।
अब देखिए, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सुधार देंगे, दूसरों की भलाई करते हैं। हमें जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों की भलाई करते हैं, और बुरे लोग जो होते हैं वो दूसरों की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। शांत का विरोधी होता है अशांत। योग करने से मन शांत रहता है। अगर आप सुबह योग या प्राणायाम करते हैं या सुबह प्रार्थना करते हैं तो हम हमारे मन को शांत रख पाते हैं। योग नहीं करने से या प्रार्थना नहीं करने से मन अशांत रहता है। अब आगे देखते हैं 7। निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। देखते हैं उदाहरण में क्या लिखा है और शब्द क्या है। सुगंध, आरोग्य, मनभावन, सरताज, बहुत। उदाहरण, सुगंध अर्थ सुवास। अब यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द को हम एक और भी कह सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, जिसको हम गुजराती में समानार्थी शब्द कहते हैं। तो सुगंध का पर्यायवाची या समान अर्थ वाला शब्द जो होगा वो होगा सुवास। अब देखते हैं इन दोनों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। अर्थात ફૂલોની સુગંધ જે હોય છે અને તેની સુવાસ જે હોય છે, સુગંધ અને સુવાસનો એક જ અર્થ થાય છે અને તે બધાને ખૂબ જ ગમતી હોય છે। હવે જોઈએ આરોગ્ય। આરોગ્યનો સમાનાર્થી શબ્દ છે સ્વાસ્થ્ય। मनीषा का आरोग्य अच्छा है। अर्थात हम कह सकते हैं मनीषा का स्वास्थ्य अच्छा है। अब आगे देखते हैं मनभावन। मनभावनનો અર્થ થાય છે મનપસંદ। मेरा मनभावन फल केला है। હવે જો કોઈ વિદ્યાર્થીને કેળા પસંદ હોય, કોઈ વિદ્યાર્થીઓને કેરી પસંદ હોય તો અહીંયા તે એની ઈચ્છા મુજબ નામ બદલી શકે છે। मेरा मनभावन फल केला है। मेरा मनपसंद फल केला है। यानी मनभावन અને મનપસંદનો અર્થ એક જ થાય છે। હવે જોઈએ સરતાજ, જેનો અર્થ થાય છે સર્વશ્રેષ્ઠ। તો आलू सब सब्जियों का सरताज है। आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। अब सरताज और सर्वश्रेष्ठ समान अर्थ वाले शब्द है। बहुत का अर्थ होता है अधिक। हम यह भी कह सकते हैं कि बहुत का समान अर्थ वाला शब्द जो है वो अधिक है। ग्वाले के पास बहुत गायें है। ग्वाले એટલે જે ભરવાડ હોય છે ગામડાઓમાં, જે ગાયો રાખતા હોય છે તેની પાસે ઘણી બધી ગાયો છે। હવે જોઈએ ગ્વાલે के पास अधिक गायें है। बहुत અને अधिक બંને સમાનાર્થી શબ્દ છે। હવે આગળ જોઈએ भाषा सज्जता જોઈએ। विशेषण। विशेषण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो हमें यहाँ क और ख दो चीजें दी गई है। हम एक के साथ दूसरे को कंपेयर करेंगे और पता करेंगे विशेषण क्या होता है। मनोज ने गाजर खाया। यहाँ पर जो है गाजर के नीचे जो है रेखा बनाई हुई है। यहाँ पर देखते मनोज ने बड़ा गाजर खाया। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो चलो सर्कल ले लेते हैं, पेन ले लेंगे हम। यहाँ आप देख सकते हो गाजर की विशेषता दिखाई गई। कैसा गाजर, तो हम कहेंगे बड़ा गाजर। तो जब किसी नाम की, किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, ये गाजर को क्या कहेंगे, हम गाजर को कहेंगे संज्ञा। क्या कहेंगे, संज्ञा हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। આ જે નામ છે તેનું વિશેષતા અહીંયા દેખાડવામાં આવી છે બડા શબ્દ વડે। બીજું જોઈએ टोकरी में शकरकंद है। टोकरी में मीठा शकरकंद है। अब यहाँ जो शकरकंद है वो क्या हो गई, संज्ञा है, और उसकी विशेषता किसमें बताई गई है, मीठा शब्द में बताई गई है। अब घोड़ा दौड़ता है। काला घोड़ा दौड़ता है। अब कैसा घोड़ा दौड़ता है, मतलब कौन से रंग का घोड़ा दौड़ता है, तो काले रंग का घोड़ा जो है वो दौड़ता है, यानी घोड़े की विशेषता दिखा रहा है। तो काला शब्द जो होगा उसको हम विशेषण कहेंगे। आगे देखते हैं गाय चरती है। अब गाय जो है वो तो संज्ञा है। सफेद गाय चरती है, यहाँ पर बिंदी आएगी, सफेद गाय चरती है। अर्थात कैसी गाय, गाय जो है यहाँ पर संज्ञा है, और कौन से रंग की गाय है, तो हम कहेंगे कि सफेद रंग की गाय है या सफेद गाय है, चरती है।
तो ये जो है विशेषण हो जाता है। लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो है विशेषता दिखा रहा है, कितने लड़के पढ़ रहे हैं उसकी संख्या हमें बताई गई है, तो हम यहाँ पर 3 जो है उसको विशेषण कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि विशेषण जो है वो विशेषता बताने वाले शब्द क्रम अनुसार भी होते हैं। क्रम अनुसार मतलब उसकी साइज भी दिखाता है, जैसे बड़ा है छोटा है, जैसे ये बड़ा है देखो, है ना। उसके बाद हम देख लेंगे कि ये मीठा है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि काला, ये जो है कुछ जो है उसकी विशेषताएं बता रहा है। 3 जो है वो थोड़ा हमें उसका शब्द बता रहे हैं कि कितने लड़के हैं, तो हम उसको विशेषण कहेंगे। 6, गिलास में दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है, कितना दूध है, बहुत थोड़ा या थोड़ा दूध है, यानी जो है ये हमारा हो गया संज्ञा और ये हो गया विशेषण। आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्य में निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध ये संज्ञाएं है। संज्ञाएं નો अर्थ नाम छे। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्रमशः बड़ा, बड़ा मतलब देखो ये गाजर इसके साथ मैच होगा, शकरकंद इस क्रमशः मतलब આની સાથે આનો ક્રમ, આ બીજા સાથે બીજાનો ક્રમ, ત્રીજા સાથે ત્રીજાનો ક્રમ, काला, सफेद, 3 और थोड़ा, अतः ये विशेषण है। संज्ञा के शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण और एडजेक्टिव कहते हैं। અંગ્રેજીમાં એને શું કહેવાય છે? એડજેક્ટિવ કહેવાય છે અને ગુજરાતીમાં આપણે તેને વિશેષણ જ કહીએ છીએ। જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની કોઈ શબ્દ દ્વારા તેની વિશેષતા દેખાડવામાં આવે તો તે શબ્દને વિશેષણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ, ક્રિયા, પढ़िए और समझिए। હવે અહીંયા ઘણા બધા चित्र આપેલા છે, આપણે ચિત્રને જોવાનું છે। यहाँ पर देखते हैं, मयूरी पढ़ती है, ये देख रहे हो मयूरी पढ़ रही है, तो ये जो पढ़ती जो है वो क्रिया हो गया। क्या हो गया? पढ़ती है वो क्या है? क्रिया है, मतलब કંઈક કરી રહ્યા છે, કંઈક કામ કરી રહ્યા છે, તેને આપણે કહીશું ક્રિયા। હવે અહીંયા જોઈએ, मीना दौड़ती है, अर्थात ये दौड़ती जो છે તે ક્રિયા છે। मीना શું કરે છે? તો કે मीना दौड़े છે, तो दौड़ती शब्द जो है वो क्रिया है। सोनल खाना खाती है, अब ये जो खाती शब्द है ये क्या हो गया है? क्रिया हो गया है। अब आगे देखते हैं, सचिन खेलता है, सचिन क्या कर रहा है? तो कि सचिन खेल रहा है, जो खेलता है ये शब्द क्रिया है। सलीम पानी पीता है, सलीम क्या पीता है? सलीम देखा जाए नहीं, सलीम क्या कर रहा है? सलीम पानी पी रहा है, तो ये शब्द जो है क्रिया होता है। जोसेफ लिखता है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जोसेफ क्या कर रहा है, तो जोसेफ लिख रहा है, उसे कहेंगे क्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है, ये वाला पढ़ती है, दौड़ती है, फिर आ गया खेलता है, आदि शब्द क्रियाओं को निर्देश करते हैं। अतः इन सभी शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं। જેમાં ક્રિયા આપેલી હોય તે શબ્દને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્રિયાપદ કહીએ છીએ। जो पद किसी कार्य करने के या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। હવે કોઈ પણ શબ્દ જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરી રહ્યા છે અને તેની આપણને જાણકારી આપે છે, તો તેને આપણે ક્રિયા અથવા ક્રિયાપદ અથવા તો વર્બ તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે આપણે જોયું, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ પાઠમાં ખૂબ આનંદ આવ્યો હશે। જો તમને આ પાઠ પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો।